Start. Good morning, class 10th. Once again, we are in our online class, and today again we are again start our chapter number 2, programming in C. And today our topic is programming language. Dear student, what is a programming language? A programming language is a language which is understood by computer. A programming language is a language which is understood by a computer. It is designed to give instruction to computer to solve a specific problem or a specific task. So that is called a programming language. So programming language is used to write computer program. Programming language can be classified into two groups, two major groups. You all know about these major groups. One is a low level language and second is high level language. So today we discuss low level languages and high level languages. What is a low level language and what is a high level language? तो आज हम इनके बारे में बेटा थोड़ा सा देखेंगे कि ये लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। मैंने आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन बताई है कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, व्हिच इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर। इट इज डिजाइन्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इट इज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम. Programming language can be classified into two major groups. One is a low-level language and other is a high-level language. So today we are talking about low-level language. What is a low-level language? Beta, low-level language is machine-oriented languages which is made by machines. Low language जो है ये ऐसी language है जो machine के साथ बनती है और इसके साथ हम बहुत सारी अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करते हैं। ये अंडरस्टैंड करना इसको आसान होता है इस लैंग्वेज को। इसके लिए डिटेल नॉलेज जो है वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो थोड़ा सा इसको रीड करते हैं कि लो लैंग्वेज है क्या। तो लो लेवल लैंग्वेज इज अ मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज टू अंडरस्टूड लो लेवल लैंग्वेज. Detailed knowledge of internet working of computer is required. Low level language includes machine language and assembly language. So low level language के दो बड़े हिस्से हैं। इसमें हमारे पास machine language आती है और assembly language आती है। अब machine language क्या है? machine language बेटा एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर जो है वो उसको क्या करती है, समझ सकती है। यानी कि machine language is just like a type of our language which we can use to solve a hardware problem of our computer or hardware problem of any machine. So this language is designed to solve a various hardware problems. To solve a various hardware problems. तो machine language जो है ये डिज़ाइन की गई है ताकि हम हार्डवेयर प्रॉब्लम्स को इसके ज़रिए से क्या करें, सॉल्व किया जा सके। अब इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा कि हम जो मशीन लैंग्वेज है इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर आपने कंप्यूटर को ओपन करना है, कंप्यूटर को यानी कि उसकी सीपीयू को या पीसी को आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसको ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर की बैक साइड पे यानी पीसी की बैक साइड पे जो है कुछ नट पॉइंट्स हैं, आपने उनको ओपन करना है। उनको ओपन करने के लिए बेटा आप यूज़ करते हैं पेचकस का या किसी और ऐसे हार्ड ड्राइव का यूज़ करते हैं ताकि उसको ओपन किया जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड, जिस तरह आप उस नट बोल्ट को ओपन करेंगे, ये सारा तरीकाकार जो है ये मशीन लैंग्वेज का है। यानी कि आपने एक मशीन को खोलने के लिए दूसरी मशीन का यूज़ किया। सो दैट इज़ कॉल्ड अ मशीन लैंग्वेज। तो आए हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर इज known as a machine language. Machine language is associated with a architecture of computer. Therefore, program written in machine language
for one computer will not work and another because of design differences. It consists of zeros and ones. It is almost impossible for a human to use machine language because it internally consists of numbers. Therefore, practically no programming is done in machine language. Instead, assembly language and high level language are used. तो यहाँ पर आज इस टॉपिक में ये हमें ये बता रहा है कि मशीन लैंग्वेज जो है ये एक कंप्यूटर के लिए अगर बनाई गई है तो दूसरे कंप्यूटर में हम इसको रन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम डिफरेंट आ रहे होंगे। तो आप इसको उसी कंप्यूटर में रन करेंगे जिस कंप्यूटर के लिए या जिस कंप्यूटर में इस मशीन लैंग्वेज को रिटर्न किया गया। फिर ये बता रहा है आगे कि इसमें हम जो है वो मज़ीद प्रोग्रामिंग जिस तरह हम जो है वो असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो हम मशीन लैंग्वेज में कर नहीं सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंस इन असेंबली लैंग्वेजेस और मशीन लैंग्वेजेस कि हम जो काम असेंबली लैंग्वेज में कर सकते हैं वो हम मशीन लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या? तो असेंबली लैंग्वेज बेटा वो है जो कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड करता है और कंप्यूटर यूजर भी अंडरस्टैंड करता है। तो ये असेंबली लैंग्वेज जिसमें जो आपकी मशीन है वो भी आपकी बात को समझ रही है और आप मशीन की बात को भी समझ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एन असेंबली लैंग्वेज। तो इसके लिए इसको भी हम थोड़ा सा रीड करते हैं। इसने हमें 3 पॉइंट भी बताए हैं असेंबली लैंग्वेज के कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सिंबॉलिक कोड ऑफ ऑब्जर्वेशन नोन एज अ मेनोमोनिक्स was developed to make computer programming easier than machine language। अब ये बता रहा है कि असेंबली लैंग्वेज जो है ये सिंबॉलिक कोड है। सिंबॉलिक कोड ऐसे होता है जिस तरह आप कुछ सिंबल्स के ज़रिए से बात करते हैं। जिस तरह अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में बताता हूँ कि हिस्ट्री में जो है वो लोग सिंबल्स के ज़रिए एक दूसरे से बात किया करते थे या सिंबल्स के ज़रिए से एक दूसरे तक मैसेज पहुँचाया करते। तो वही सिंबल्स जो है आज हम जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में, हाई लेवल लैंग्वेजेस में और लो लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। उन सिंबल्स में आपको कुछ कोड्स होते हैं जिनमें आप लेटर्स का भी यूज़ करते हैं, जिनमें आप ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं, जिनमें आप जो है वो डॉट्स का, सेमीकोलॉन्स का भी जो है वो यूज़ करते हैं। तो इनके ज़रिए से यानी कि तमाम लेटर्स, तमाम नंबर्स और तमाम ऑपरेटर्स मिलकर एक कोड बनाते हैं। ठीक हो गया? सो दीज कोड्स आर कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। तो ये असेंबली लैंग्वेज जो है ये बनते हैं और इनके ज़रिए से फिर हम जो है वो इनको कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज। यानी कि असेंबली लैंग्वेज जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है तब हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर जो है हमारे प्रोग्राम को रन करना शुरू करता है। और जब कंप्यूटर इस प्रोग्राम को रन करता है तो कंप्यूटर इसको वापस असेंबली लैंग्वेज में, जब आपके पास यानी कि आपको अपनी सी प्रोग्रामिंग में कुछ इनपुट चाहिए, कुछ इनपुट आपने दिया है और आपको उसकी आउटपुट चाहिए। तो यानी इनपुट जो है ये आपने असेंबली लैंग्वेज में दिया है, कंप्यूटर इसको जो है कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और जब आपको आउटपुट मिलेगा तो वो वापस उसको असेंबली लैंग्वेज में वापस उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो फिर आपके पास जो है रिजल्ट आपको शो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको असेंबली लैंग्वेज आती है, आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज में मशीन को दी और मशीन ने जब उसको प्रोसेस किया तो उसके बाद उसका आउटपुट मशीन ने भी आपको असेंबली लैंग्वेज में दिया है। तो दैट इज कॉल्ड एन असेंबली लैंग्वेज। सो बेटा असेंबली लैंग्वेज में जो फीचर्स या जो स्पेशल कैरेक्टर्स या जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं, कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो प्रोग्राम या अपनी प्रॉब्लम या प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो उन ऑपरेटर्स के ज़रिए से हम असेंबली लैंग्वेज में उन ऑपरेटर्स को यूज़ करके अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। हम इसको पढ़ते हैं। असेंबली लैंग्वेज अलाउज प्रोग्रामर टू हैव एक्सेस to all the special features of the computer. They are using certain types of operation which are not possible in high level language or easily programmed using assembly language. तो जो ऑपरेशन आप हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं कर सकते वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं इसमें असेंबली लैंग्वेज में। इसके बाद आवर सेकंड पॉइंट इज जनरली अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज will require less storage and less running time than one prepared in a high level language। अब यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं वो हमारा टाइम भी ज़्यादा लेता है, वो हमारी स्पेस यानी कि मेमोरी भी ज़्यादा पकड़ता है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में जब हम इस प्रोग्राम को करते हैं तो ये टाइम लिमिट भी कम हो जाती है, इसमें आपकी स्पेस लिमिट भी कम हो जाती है और ये जो है ये उससे ज़्यादा फास्ट जो है ये रन होता है। इसके बाद आते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पर।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस या नेचुरल लैंग्वेज से क्या करती है, मिलती जुलती है। यानी कि आप कमांड अपनी नेचुरल लैंग्वेज में देते हैं और आपको रिटर्न भी आपकी नेचुरल, यानी कि अगर आपने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश में ही उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है और उस प्रोग्राम का आंसर भी आपको इंग्लिश में मिलेगा। अगर आपने उसको उर्दू में रिटर्न किया है या उर्दू में उसको इनपुट किया है तो वो आपको आउटपुट भी उर्दू में देगा। सो दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज आर इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज and they are commonly used for writing computer programs. These languages use English language words such as print, go to, if, and etc. Therefore, they are easy to learn and use. Some example of high level languages are Visual Basic, C, Java, and Pascal. So these are called हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो भी मैंने आपको बताई है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इंग्लिश ओरिएंटेड है। आप कोई भी प्रोग्राम उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो वो आपको आउटपुट भी इंग्लिश में देता है। इसके उसने 3 बड़ी लैंग्वेजेस में एग्जांपल बताई हैं, जैसे विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक बेटा ये 5-6 क्लास में भी आपने पढ़ा हो, लेकिन 5-6 क्लास में है, अभी की बुक में है। और इसके बाद सी है, जावा हम आगे पढ़ेंगे, पास्कल है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास आगे पास्कल के बारे में या जावा के बारे में और विजुअल बेसिक के बारे में आगे टॉपिक्स हैं, इनको हम रीड करेंगे। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज में उसने सबसे पहले प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के बारे में बात की है कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस जो हैं ये क्या है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस बेटा ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बेस होती हैं, कंसेप्ट होता है ये मॉड्यूल प्रोग्रामिंग का, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है जिसको हम प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस कहते हैं। इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू सिमिलर पार्ट्स नोन एज मॉड्यूल्स। तो कहता है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम जो है ये कुछ हिस्सों में जो है वो बढ़ जाता है या कुछ हिस्सों में प्रोग्राम तकसीम हो जाता है, जिनको मॉड्यूल्स कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? मॉड्यूल्स कहा जाता है। तो कहता है मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ अ वन और मोर मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल जो है वो या मॉड्यूल्स जो है ये कंसिस्ट करता है एक या उससे ज्यादा मॉड्यूल्स के ऊपर। अ मॉड्यूल इज अ ग्रुप ऑफ अ स्टेटमेंट दैट कैन बी एग्जीक्यूट मोर देन वन इन अ प्रोग्राम। तो एक से ज्यादा या एक से ज्यादा मॉड्यूल को या एक से ज़्यादा जो पार्ट्स हैं उस प्रोग्राम के या उस प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस के जिनको हम प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ईच मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो अब कहता है कि एक जो मॉड्यूल है यानी कि वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस जो पार्ट्स में हो गई थी तो इसका एक पार्ट हमारे प्रोग्राम के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो क्या करता है? परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि हर एक पार्ट का यानी कि हर एक जो तकसीम हो चुकी है उसके हर एक पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। उसका एक स्पेसिफिक टास्क है। कहता है इट इज इजी टू डिजाइन, मॉडिफाई एंड डिबग अ प्रोग्राम इन अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज सिंस इट प्रोवाइड्स बेटर प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज। तो कहता है ये एक बेहतर डिज़ाइन, ये एक बेहतर मॉडिफाइड डिज़ाइन, इसको एक्सचेंज करने के लिए, इसको रन करने के लिए हमारे पास प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस जो है ये प्रोवाइड की गई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ताकि हम प्रोग्राम की फैसिलिटीज़ को समझ सकें और फैसिलिटेट हो सकें। सम एग्जांपल ऑफ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस आर फोर्टन, पास्कल, सी एंड बेसिक। तो इसने हमें कुछ 3 इसकी एग्जांपल बताई हैं जिनमें फोर्ट्रेन है, पास्कल है और सी है और इसकी बेसिक्स है। सो बेटा दिस इज आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास वी लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। और हाई लेवल लैंग्वेज के जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस भी देखेंगे, जिस तरह C++, विजुअल बेसिक, C# या जावा। फिर इसके बाद हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसको कंप्लीट करें। तो अभी मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन रह गया था, लास्ट क्वेश्चन जो है ये है कन्वर्ट द एल्गोरिथम ऑफ क्वेश्चन 4 to 9 टू फ्लो चार्ट। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा मैं आपको स्क्रीनशॉट इसकी भेज रहा हूँ, तो आप सबने इस क्वेश्चन को अपनी नीट कॉपीज पर उतारना है और अपना होमवर्क मुझे सेंड करना है। तो बेटा आई होप यू ऑल आर फाइन। अपने आप को सेफ रखें, घरों में रहें और बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, बार बार हाथ धोएं और अपना बहुत ख्याल रखें।
टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।